ओके दैन ठीक है। लो जी, एक बार मैं तुहानूं रिवाइज करवा देना। ई फ्लक्स ਆਪਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈंने ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਸੈਕ ਨਿਊਟਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਈ ਫਲਕਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਈ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀ ਕਰਤੀ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਔਰੀਫਿਸ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਮਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਔਰੀਫਿਸ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਟ ਅ ਡੈਪਥ d below the surface of the water. Now we want to find the velocity of the efflux. So this is method 1 and we have applied the Bernoulli's theorem at these 2 points. Wait a minute, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 points ਨੇ, point number 1 ਤੇ point number 2. I hope my mouse is visible to you. point number 1 and point number 2 ਆਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ point number 1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਮਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਅਸਿਊਮਡ ਇਟ 0। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਵੱਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। 1 ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਬਿਕੋਜ਼ no energy has been put in and no energy has been taken out, so the total energy in 1 is equal to total energy 2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ। P1 is the pressure at point 1, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਰੋ ਜੀ ਐਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 એનર્ਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, ਦੈਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਫ them, ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਂਸਲਡ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। फिर उन जी जो ये आ गया आपके पास, ये दोनों के दोनों, अब क्योंकि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों के दोनों हमारी ऑलमोस्ट सेम हाइट पे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है, जिसके कारण ये वाला और ये वाला तो हमने कैंसिल कर दिया। रह गई आपके पास ये चीज़ें। इस चीज़ को मैंने 0 पुट कर दिया बिकॉज द वेलोसिटी एट पॉइंट नंबर 1 हैज़ बीन टेकन 0। सो P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी हैव कैंसल देम। और जो P1 ते इत्थे प्रेशर आएगा, this pressure will be like this। ये P1 है। P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ cancelled the atmospheric pressure, so what are we left with? Rho gd is equal to half rho v2 square। from here यहाँ से हमने v2 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो v2 is equal to square root of 2gd। ओके, तो अगर मैं इसको h ही मान लूं तो यह बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, which is the velocity of efflux will be same as that of a body which is dropped from the height h। तो जितना उसने यहाँ पर जाते जाते वेलोसिटी गेन की, उतनी वेलोसिटी से वो पानी बाहर की तरफ आएगा। इज दैट क्लियर है ना? अब मैं आपको सेम ही डायग्राम के अंदर मेथड 2 यहाँ पर लगाकर दिखाता हूँ। मेथड 2 मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ना एग्जाम में जब करने को मिलेगा तब आपको कंफ्यूजन होगा।
उससे पहले कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको मेथड 2 पहले ही करवा रहा हूँ। तो लेट अस कॉल इट मेथड 2। ठीक है, अब देखो आप, तो मेथड 2 में जो मेरे पास जो ये पॉइंट है वो मैं पॉइंट्स यहां पर नहीं लूंगा। ओके, चलो ठीक है, और पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मैंने लिए ये देखते हैं। तो ये वाला तो पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास, पॉइंट नंबर 2 तो मैंने शिफ्ट नहीं किया, वो जहाँ पर था वहीं पे है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 इज टेकन एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड नाउ। ओके, एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो अब इन दोनों में मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूँ एंड आई विल शो यू दैट द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग विल बी कंप्लीटली सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस। तो देखते हैं, तो अब आ गया टोटल एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी 2। तो अब 1 पे लिखेंगे पहले, तो पहले तो मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। H1 उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां पर डिनोट करूंगा। सो दिस विल बी P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब देखो, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करूँ, जीरो। सरफेस पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भाई पानी निकल रहा है v वेलोसिटी पे, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज मूविंग डाउन एट पॉइंट नंबर 1? दैट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि भाई आपका टैंक इतना बड़ा है, इतना बड़ा टैंक है, और उसमें से छोटी सी उसमें ऑरिफिस में से अगर पानी निकल भी रहा है तो टैंक का लेवल थोड़ा ना ऐसे डाउन जा रहा है, तो यू कैन अज्यूम इट दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो भाई ये वाली काइनेटिक एनर्जी को तो मैंने जीरो मान लिया, है ना। रह गया अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को तो मैं अभी इक्वल एंड अपोजिट कह नहीं सकता, अभी काट दो, इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अलग है, यहाँ पे अलग है। वी हैव टू सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज। और लेट अस से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा जो डी था, मैंने फिर से इसको डी ही सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, तो दिस विल बी, अब प्रेशर 1 कितना है, PATM। हाँ भाई, प्रेशर 1 PATM हो गया, क्योंकि ऊपर से तो सिर्फ ATM है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो है ही नहीं, तो P0 प्लस रो जी। अब ये H1 जो है, चलो इसको मैं अभी H1 ही लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू P2। देखो P2 को क्या लिखूं बेटा, P एटमॉस्फेयर। तो जब भी पानी यहाँ से निकल जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में बाहर आ गया, तो एक तरह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चला गया, क्योंकि पहले वो कंस्ट्रिक्टेड था और वो अपनी मर्जी से एक्सपैंड नहीं हो सकता था, वो किसी के वजन के नीचे ना दबा हुआ था, तो प्रेशर। जब वो ऑरिफिस से बाहर आया, बाहर आते ही उसको कोई प्रेशर ही नहीं मिला, बड़े प्यार से एक्सपैंड कर गया, वो यहाँ से निकला और ऐसे एक्सपैंड, तो उसको उतना एक्सपेंशन किया जितना भाई P0 के बराबर आने के लिए चाहिए, P0 हो गया। तो ये आ गया P0 प्लस, फिर अब इसकी तो वेलोसिटी मैं निगलेक्ट कर नहीं सकता हूँ, प्लस रो जी H2। तो रो जी H2, अब P0 और P0 को पहले कैंसिल कर दो आप। अब रो जी H2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन गया मेरे पास रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। एम आई क्लियर, है ना, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर H1 माइनस H2 क्या है, D, तो मैं अब इसको D पुट कर देता हूं। ये आ गया रो जी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। रो से रो कैंसल, फ्रॉम हियर आई जंप टू दिस कंक्लूजन दैट V2 शुड बी, बेटा जी एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो अभी अभी हमने ऊपर देखी हुई है, ये देखो आपके सामने, दिस इज कम्प्लीटली सेम। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक्चुअली,
आई डोंट नो 12th में हुआ था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर हुआ था, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी हम यही चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि यार ये बर्नौलीज थ्योरम लगी कहाँ कहाँ पे है। रिजल्ट याद है मुझे कि v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GD, बट अगर मैं कॉन्सेप्चुअल की बात करूँ तो विच आर द 2 पॉइंट्स वेयर वी आर यूजिंग दिस बर्नौलीज थ्योरम। आई वॉज सो हाईली कन्फ्यूज, मैंने कहा यार पता नहीं यार ये क्या चक्कर पड़ गया। फिर मैंने दोनों को करके देखा एंड आई फाउंड दैट द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि भाई किसी भी 2 पॉइंट पर आप लगा लो बर्नौलीज थ्योरम, आपका आंसर सेम आएगा। चलो जी, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, एंड नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर सपोज टू बी नोटेड अबाउट दिस थिंग। तो सबसे पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया है ना। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तो ये लिख लो, is equal to the velocity gained by a body which is dropped by the height equal to the डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो ऑरिफिस की जितनी डेप्थ है, अगर उतने डिस्प्लेसमेंट से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो आप उसने उतनी ही वेलोसिटी गेन कर लेनी है जितनी ई फ्लक्स की वेलोसिटी यहां पर आपको मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि जी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो डेप्थ के स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब डेप्थ जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे वेलोसिटी विल बी हायर। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया आपके पास केस। अब मैं यहाँ से जब मैंने ऑरिफिस किया तो जो बिल्कुल नीचे वाला ऑरिफिस होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो सेंटर वाला होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और जो बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस वेलोसिटी इज v1, दिस इज v2 एंड दिस इज v3। सो v3 विल बी मोर देन v2 विल बी मोर देन v1। एनी डाउट्स? नो डाउट? ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 3। अब वेलोसिटी तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और टाइम पीरियड अब हम देखते हैं, यू कैन कॉल इट टाइम टेकन बाय द फ्लूइड ही लिखा हुआ है, इट्स नॉट दैट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाय फ्लूइड, टाइम टेकन बाय फ्लूइड। तो अब भी फ्लूइड आपका नीचे गिरने लग गया तो हमने उसको देखना है कि भी उसने टाइम कितना लेना है। यहाँ से जब ये नीचे गिरा तो व्हाट विल बी द टाइम। तो ये पहली बात तो ये डी है, तो इसको नीचे गिरना है तो आपको हाइट गिवन होगी। तो लेट अस से आपको ये टोटल हाइट एच भी गिवन है, तो ये वाला कितना हो गया एच माइनस डी, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल एच, h2, जो मैंने यहाँ पर h2 लिखा था इसको लिख देते हैं h। तो इसको आप लिख दो h, है ना, h2 कह लो या h कह लो। बेटा जी एवरीबडी लिसनिंग, समझ आ रहा है? चलो, तो अब जब हमने
जब हमें ये पता चल गया भाई टाइम इसको ड्रॉप करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगना चाहिए, वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया, तो बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, वी कैन से कि जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2h/g कर देता हूं मैं, यही होना चाहिए। तो दिस शुड बी कमिंग आउट टू बी 2 इंटू कैपिटल H माइनस जो ऊपर से डेप्थ है डिवाइडेड बाय g, योर दिस शुड बी दी टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये बात क्लियर हो गई, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये तो अपने आप में कंक्लूजन बन गया। तो इतने समय में आपका जो पानी है वो जमीन पे गिर जाएगा, इजी है ना, नो न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज रेंज। रेंज ऑफ ई फ्लक्स, भाई होली, तो होली के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ टैंक में छेद किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गीले हों, लेकिन लोग ही अगर दूर हो गए उस रेंज से तो फिर कैसे बात बनेगी। तो रेंज निकालनी बहुत ज़रूरी है, निकाल लो, समझ लो। तो ये रही आपका टाइम पीरियड। अब यहाँ से मान लो ई फ्लक्स आपका आ रहा है v2 वेलोसिटी से, तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वी नो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v विल रिमेन एट एवरी पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करूँगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी यहाँ पर भी आएगी तो v ही, horizontal velocity will not change because this is what we have learnt in horizontal projectiles, because there is no force in horizontal way, in horizontal direction। तो रेंज ऑफ ई फ्लक्स जो है वो मेरे पास क्या आनी चाहिए। आप कहेंगे कि सर वेलोसिटी आपकी थी कितनी, जितनी से आया था, मान लो वेलोसिटी ये, और मल्टीप्लाई कर दो जो भी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कैसे करोगे, वेलोसिटी विल बी गिवन बाय 2g d का स्क्वायर रूट, और टाइम पीरियड कितना होगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल H माइनस डी डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर रूट। तो g का स्क्वायर रूट और g का स्क्वायर रूट तो कट गया, तो आपके पास बचा क्या, ट्वाइस ऑफ H माइनस डी इंटू डी का स्क्वायर रूट। ये बात क्लियर होगी बेटा, देखो तो ये आपके पास आ गया उसकी रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। खैर ये एक एमसीक्यू टाइप के लिए ही ज़्यादा फार्मूला है, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा कम यूज़ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 100% इसको क्रैम कर लो। क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, चांसेस मतलब बहुत रेयर से ही होते हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आप अपनी मेमोरी को बचा सकते हो कि भाई मुझे याद नहीं है बट मुझे आता सब कुछ है। तो अगर वो चीज़ अगर आप कर लो तो मेरे हिसाब से इजी हो जाता है, बाकी डिपेंड करता है अगर रट्टा तेज है। हाँ बेटा बोलो, यस 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 यस, कैपिटल H आपका टोटल हाइट आ जाएगी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये आपका कैपिटल H, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैक्सिमम रेंज कहाँ से मिलेगी और कैसे होगा, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी से दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम और नॉट। तो सिंपल बात है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इसको अगर आप करो तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए होती हैं, बट फिर भी फॉर मैक्सिमम हाइट dr बाई dh शुड बी इक्वल टू 0। कर दो डिफरेंशिएशन फिर, तो इसको कैसे करोगे, 2 इधर चला गया और स्क्वायर रूट ऑफ d भी इधर आ गया, ठीक है, और आपके पास अब ये चीज़ बच गई, तो हाफ इंटू h माइनस डी की पावर आ जाएगी -12, है ना।
इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ सॉल्व होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, वेट ए मिनट, इसको डिफरेंशिएट करने का दूसरा मेथड देखते हैं। ओके, मैंने ये गलती की, ये यहाँ पर स्मॉल h लिख दिया मैंने, गलती ये हुई, ये यहाँ पर d लिखना था। ठीक है, अब हो जाएगा। अब बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो h माइनस डी को बचा लो और पहले d को कर दो, फिर उसके बाद प्लस d को बचा लो और इसको कर दो, तो ये आ जाएगा -1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। बेटा डिफरेंशिएट करके ये वाली टर्म बनेगी, आप देख लो। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये स्मॉल डी आ गया आपके पास h/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ई फ्लक्स जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर पर है, यहाँ पर अगर मैं बोल लूँ सेंटर पर है, तो इसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमाइज की जा सकती है, जबकि इसकी वेलोसिटी कम है। नीचे की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, तो वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन रेंज कम है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो वेलोसिटी कम है और रेंज भी कम है। ठीक है ना? इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर दोबारा बना दूँ डायग्राम एक, तो किस तरह का डायग्राम बनेगा देखो। बेटा जी बात क्लियर हो गई कि मैंने क्या कहा? हाँ बेटा बोलो। नहीं, बॉटम पे वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन उसको ट्रैवल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। थोड़ा सा टाइम हुआ नहीं कि वो ज़मीन पे लग गई है ना? तो डेफिनेटली गया तो यूं ही होगा, यूं करके, लेकिन वो यहाँ जाके लग गया। और जो बिल्कुल ऊपर से शुरू हुआ वो भी ऐसे करके यहाँ गया। तो इन दोनों की रेंज सेम हो गई, लेकिन जो मिड पॉइंट से जाएगा इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि भाई यहाँ से जो रेंज है वो मैक्सिमाइज कर दी गई। इज इट ओके? तो ये हो गया आपका रेंज मैक्स। दी ओनली थिंग इज कि यहाँ पर आपका जो डी है दैट इज h/2। हाँ भाई, एनी डाउट? नो डाउट कि कुछ डाउट? गुड, चलो अब चलते हैं हम इसके आगे। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट हो गया। सो लेट अस मूव टू अवर 5th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा देखो, द नेक्स्ट पॉइंट इज, वो भी रेंज के बारे में ही है। अब इक्वल रेंज फॉर 2 डिफरेंट डेप्थ्स। अब देखो, रेंज का मेरे पास फार्मूला आ रहा है ट्वाइस ऑफ ही आ रहा है ना, ट्वाइस ऑफ d इंटू h माइनस डी। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं d की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं h माइनस डी, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस इक्वेशन में? अब d की जगह h माइनस डी लिख दो और यहां पर कैपिटल H माइनस दिस प्लस स्मॉल d, और इसका कर देते हैं हम स्क्वायर रूट। तो यहां से h से h कट गया, तो ये तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन ही बन गई। इसका मतलब द रेंज इज सेम इन बोथ ऑफ दीज केसेस। ठीक है, वाई? अगर मैं d को h माइनस डी से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे सेम रेंज मिलेगी। तो ये रही मेरे पास, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, जितना ये हाइट होना चाहिए, है ना? तो लेट मी से दैट दिस इज स्मॉल h,
और उतना ही ऊपर से इसकी डेप्थ होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये चीज और ये चीज, तो रेंज मेरे पास सेम आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं डी जो है, अब मान लो ये वाला मेरे लिए डी था, अगर मैं इस डी को सब्स्टिट्यूट करता हूं कैपिटल एच माइनस डी से, तो वो ये वाला, यही वाला आ गया ना नीचे की तरफ यहां तक। बेटा जी ये बात क्लियर हो गई? बेटा ये जो h है ना, ये बेसिकली d ही है। इसको आप d लिख लो फिर, अगर ये कंफ्यूजन है तो ये लो। अब इसको मैं यहाँ पर d लिख देता हूँ। तो अब आप देखो, अगर ये d है तो मेरे पास ये रेंज आई। अगर इस d को मैं कैपिटल H माइनस डी से रिप्लेस करूँ, मतलब यहाँ से ऑरिफिस आ जाए, ये कैपिटल H माइनस डी हो गया, है ना। तो D की जो रेंज आएगी वही H माइनस डी पर भी मुझे सेम ही रेंज यहां पर मिल रही है। हाँ भाई बिस्मित, नवदीप बेटा, इज इट ओके? गुड। नवदीप इज इट ओके? गुड। तो बेटा ये चीज़ हो गई आपकी ऑरिफिस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट ऑरिफिस। एक और छोटा सा डेरिवेशन होता है बट वी आर स्किपिंग दैट पार्ट बिकॉज वो मतलब आने वाला नहीं है, तो वी आर नॉट डूइंग दैट, बट अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक पार्ट, जिसमें हमने कर लिया सबसे पहले डेंसिटी एंड प्रेशर, उसके बाद हमने किया क्या चीज़ की थी, उसके बाद फ्लोटेशन, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर द फ्लोटेशन, उसके बाद हमने की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ इट, एंड देन दिस ई फ्लक्स। सो दिस मच पार्ट इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, तो मैं आज की क्लास अब हम यहीं पे इसको ऑफ करेंगे। 2 मिनट, लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।